بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ کوئٹہ کے کیچی بیگ تھانے کی حدود میں 2 بچیوں کی بوری بند لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ بچیوں کی عمریں 4 سے 5 سال کے درمیان ہیں۔ لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم متحد ہے، شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ ہماری فوج کی دلیری اور مہارت نے دنیا کو حیران کر دیا۔ پاکستان کو جو عزت ملی ہے وہ جنگ جیت کر ملی ہے۔ ایئر فورس کی کارکردگی نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ غزہ میں ظلم و بربریت کی ایسی مثالیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ پاکستان کی قوم غزہ پر یکسو ہے۔ ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ چیئرمین NDMA کو ہدایت دی کہ فل لوڈڈ امدادی کھیپ غزہ روانہ کی جائے۔ امداد اردن کے ذریعے بھیجی جائے گی۔ تمام رکاوٹوں کے باوجود بھرپور تیاری مکمل ہے۔ ستمبر میں اقوام متحدہ میں پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ غزہ کے لیے پاکستان کی آواز دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر ایک توانا آواز بنے گی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر انقلابی تبدیلیاں دیکھ کر دل خوش ہوا۔ دہشت گردی کے خلاف جو دن رات قربانیاں دی جا رہی ہیں، کل میں گیا لاہور ریلوے اسٹیشن، حنیف عباسی صاحب نے وہاں پر جس طریقے سے لاہور ریلوے اسٹیشن میں تبدیلیاں، انقلابی تبدیلیاں لے کے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دل باغ باغ ہو گیا بالکل۔ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو جنگ جو جیتی ہے آپ نے، آپ کی افواج نے، آپ ان کی جو دلیری، ان کی جو ایکسپرٹیز، اور وہ بھی کنونشنل وارفیئر میں، دنیا دنگ رہ گئی ہے۔ ایئر فورس نے کمال کر دی۔ تو یہ ہے نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس۔ غزہ کے لیے بھرپور تعاون پیش کیا اور وہاں پر ان کے ساتھ آواز ملائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی یہ اہم ترین ضرورت ہے۔ اس وقت جو غزہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس طرح کی بربریت دیکھتی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ چیئرمین NDMA کو میں نے احکامات کنوے کروائے کہ 2 کنسائنمنٹس فل فار ہم بھجوائیں، وہ جائیں گے ایجپٹ کے ذریعے اور جارڈن کے ذریعے۔ پاکستانی قوم اس کے اوپر یکسو ہے۔ ہمارا جو موقف ہے بڑا واضح ہے، اور انشاءاللہ ستمبر میں جو ہوگا سیشن، وہاں پر ہم انشاءاللہ بھرپور پاکستان کا موقف بیان کریں گے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر سخت تجارتی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارت پر 1 اگست سے 25% ٹیرف لاگو ہوگا۔ اس کے علاوہ مزید جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگرچہ بھارت کو امریکہ کا دوست سمجھا جاتا ہے، لیکن دہلی نے سالوں سے تجارتی حوالے سے امریکہ کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ بھارت کے درآمدی محصولات دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور وہ غیر مالیاتی تجارتی رکاوٹوں کے حوالے سے بھی سر فہرست ہے۔ یہ تمام اقدامات ناقابل قبول اور توہین آمیز ہیں۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں بھارت کے روس کے ساتھ دفاعی اور توانائی کے شعبے میں قریبی تجارت پر بھی شدید اعتراض کیا۔ صدر ٹرمپ، بھارت نے ہمیشہ روس سے اپنی اکثریتی فوجی ساز و سامان خریدا ہے اور توانائی کے شعبے میں بھی وہ چین کے ساتھ روس کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ بھارت پر 1 اگست سے 25% ٹیرف لاگو ہوگا۔ اس کے علاوہ مزید جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ مودی ہمارے دوست ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ زیادہ کاروبار نہیں کرتے۔ امریکہ کے بھارت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف وصول کرنے والا ملک ہے۔ بھارت اب ٹیرف کی حد کم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم کسی کو بھی ڈالر پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ 1 اگست امریکہ کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ مارکے حق میں شکست کے بعد بھارت پراکسی جنگ میں شدت لا رہا ہے۔ پاکستان علاقۂ امن کے لیے پرعزم، ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کو تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب، کہا بھارتی اقدام بلوچ عوام کی حب الوطنی کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش ہے۔ ان فطروں کا انجام بھی وہی ہوگا جو مارکے حق میں ان کے آقاؤں کا ہوا۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب، فرقہ یا قومیت نہیں ہوتی۔ اس کے خلاف پوری قوم کا متحد ہونا ضروری ہے۔ قومی وقار سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے قوم اندرونی یا بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اسلام آباد سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارت مارکہ حق میں شکست کے بعد اب فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان جیسی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ISPR کے مطابق GHQ میں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات میں آرمی چیف نے بلوچستان میں پائیدار امن، ترقی اور قومی یکجہتی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا۔ پاکستان نے بھارتی الزامات کو اشتعال انگیز اور بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ترجمان کے مطابق یہ بیانات حقائق کو مسخ کرنے اور کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہیں۔ پاکستان نے بھارتی فضائیہ حملہ ناکام بنایا، دشمن کے طیارے مار گرائے۔ بھارت کا نام نہاد آپریشن مہادیو بے بنیاد ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے۔ بھارت اپنی ناکامی چھپا رہا ہے۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے اور بھارت کی نیو نارمل پالیسی جوہری بلیک میلنگ اور سینتاس معاہدے کی معطلی کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستان مسئلہ کشمیر میں تمام معاملات کے پرامن حل کا حامی ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए कई अहम फैसले और मंजूरियाँ दी गईं। काबीना ने हज पॉलिसी 2026 और नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 की बाकायदा। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ कहते हैं कि सरकारी स्कीम के तहत 1,19,210 का कोटा है। सरकारी हज का तखमीना 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत हज अखराजात 2 अक़साम में अदा किए जा सकेंगे। आज़मीन हज की खिदमत के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी। नाज़रीन, शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुआशी इशारे में बेहतरी आई है। इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। जून और जुलाई में महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक्सपोर्ट में 4% से ज़्यादा इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र $38 अरब से ज़ायद रहीं। ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। माशियत की बेहतरी के लिए काम हो रहा है। बैरूनी खातों पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की गई। गुज़श्ता माली साल में तमाम अदायगियाँ वक्त पर की गईं। बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे को सामने रखकर शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया। करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस की बुलंद सतह पर पहुंचा। कि चूँकि एनर्जी प्राइसेस अभी रिसेंटली कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स हुई हैं और उसके बेस पे कमेटी ने डिसाइड किया कि हम जो है वो इस साल का इस कमेटी में इन्फ्लेशन इसका जो रेट है वो उसको मेंटेन रखें। रेमिटेंसेस का बहुत अच्छी आपने देखा ग्रोथ है पिछले साल और ये $38 बिलियन टोटल रेमिटेंसेस थी। सरप्लस जो है वो हमारा कोई 14 साल के बाद जो है वो सरप्लस आया है और पिछले 22 साल का तकरीबन ये हाईएस्ट सरप्लस है। पिछले साल के जितनी हमारी डेट सर्विसिंग थी वो सारी की सारी ऑन टाइम हमने पेमेंट्स की कि नेक्स्ट ईयर 5 to 7% रहेगा। फिर हमारा जो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0 से 1% के दरमियान रहेगा और हमारा जो GDP ग्रोथ है वो 3.25 से 4.25% पे रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट दहशतगर्दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लेमिन गंडापुर का सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद वीडियो पैगाम कहा कि दुश्मन मालिक कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हो। दहशतगर्दी के तमाम ताने बाने भी उन्हीं दुश्मन मालिक के साथ ही जोड़ते हैं और इसका खात्मा हम सब ने मिलकर करना है। एक साजिश के तहत हुकूमत, अवाम और फोर्सेज के दरमियान एक अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। दहशतगर्दों के साथ साथ इनके सहूलतकारों का भी खात्मा करना होगा। दहशतगर्दों को किसी सूरत में अपनी आबादियों में नहीं छोड़ेंगे और ना ही उन्हें रहने देंगे। हम फौज और पुलिस की कुर्बानियों का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगियां हमारे लिए कुर्बान की हैं। 2 अगस्त से जिरगे शुरू हो रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए ग्रैंड जिरगा भी होगा। अवाम अमन यहाँ पे कायम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट है और वो है दहशतगर्दी। हुकूमत ने, अवाम ने, तमाम इदारों ने, फोर्सेस ने, पुलिस ने, फौज ने मिलकर हमने अमन को इसलिए कायम करना है क्योंकि इस अमन से हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे सूबे का मुस्तकबिल और हमारे मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। कि दुश्मन ममालिक हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन हो। अवाम के दरमियान और फोर्सेस के दरमियान एक अदम एतमाद पैदा किया जा रहा है। नाज़रीन, अलीमा खान ने कहा है कि हमारे ऊपर इतने मुकदमात दर्ज किए गए कि मालूम ही नहीं कि कहाँ कहाँ दर्ज हुए। आज हमारी कोशिश थी कि हमारे वकला दलाइल देते हैं, अब ये केसेस ख़त्म होने चाहिए। अगर ये जेल भेजना चाहते हैं तो भेज दें। एक बाशऊर मुआशरा सियासत के अंदर होता है। वो रावलपिंडी में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। इसमें डालते जाएं, अब तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि पता भी नहीं चलता। जब कहते हैं तो आ जाते हैं। हम तो आज चाह रहे थे कि जज ये हमारी टीम आर्गुमेंट्स पेश करे और अगर वो इसको जेल भेजना चाहते हैं जेल भेज दें, अगर फारग करें केसेस से। अब हम तो चाह रहे हैं कि इसकी आर्ग्यूमेंट्स हो, इसकी ख़त्म करें। अगर वो कहें कि हम किसी पार्टी के साथ हैं तो क्या वो जुर्म कर रहे हैं। बेटा ऐसी सोच आप अपनी ठीक करो कि PTI आपको जो कह के भेजते हैं ना, जो बात है ना PTI वो एंटी स्टेट है, ये पहले आप इसको ठीक करो। सियासत एक बाशऊर मुआशरा सियासत के अंदर है।
बानी पीटीआई के बेटे शराइत पूरी करके पाकिस्तान आ सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी पीटीआई के बेटों को आने से हुकूमत क्यों रोकेगी। पाकिस्तान आने के लिए विज़िट, इजाज़त और शराइत पूरी करके आ सकते हैं। मैंने मीडिया पर ही पढ़ा है कि वालिद ने मना किया कि वह ना आए। उनका कहना था कि अगर बानी पीटीआई के बेटे फैसला कर रहे हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान आए। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि पीटीआई तशद्दुद की तरफ रुजू न करे। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक होता है, उन्हें इसकी इजाज़त होगी। अगर पीटीआई चाहती है कि 9 मई या 26 नवंबर फिर बर्पा करे तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर दिफा कहना था कि पाकिस्तान ने मोदी के साथ मट्टी में मिला दी और भारतीय वज़ीर आज़म अब बैनुल अक़वामी मजाक बन चुके हैं। अपोजिशन का एक और रुकन मुअत्तल। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने अपोजिशन रुकन एजाज शफी को 15 सेशंस के लिए मुअत्तल कर दिया। एजाज शफी को गैर पार्लिमानी और नाजिबा अल्फाज के इस्तेमाल करने पर मुअत्तल किया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि उमर अयूब की चीफ जस्टिस को ख़त के जवाब में चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने उमर अयूब से रब्ता कर लिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने उमर अयूब को जुम्मे को मिलने के लिए बुलाया और उमर अयूब ने इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस से मिलने से इनकार कर दिया है। उमर अयूब ने चीफ जस्टिस को कहा कि इस्लामाबाद में आपसे मिलने आया तो वापस नहीं जा सकूँगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उमर अयूब के इनकार पर चीफ जस्टिस ने दूसरा ऑप्शन पूछा। उमर अयूब ने चीफ जस्टिस से पेशावर में मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के बाद कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त। शिबली फराज ने 9 मई के मुकदमात में अदालती कार्रवाइयों पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ख़त में कहा गया है कि 9 मई के मुकदमात में फेयर ट्रायल और बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन का किरदार जानिबदार और दबाव पर मबनी है। FIRs का इंतखाबी इंदराज शवाहिद में छेड़छाड़ तशवीशनाक है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने अदालतों के गैर मामूली औकात पर 20 सवालात उठा दिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से होने वाले सेनेट इंतखाब में 5 ख़वातीन उम्मीदवार मैदान में रह गईं। नून लीग के उम्मीदवार के हक़ में VP उम्मीदवार दस्तबरदार हो गई हैं। राहिला बीबी ने इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को ख़त लिख दिया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राहिला बीबी सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर इंतखाब में नून लीग की सोबिया शाहिद का साथ देंगी। PTI के आज़ाद उम्मीदवार सुमेरा शम्स मैमुना बासत भी इंतखाब से दस्तबरदार हो गई हैं। सेनेट इंतखाब की आज़ाद उम्मीदवार साइदा बेगम भी दस्तबरदार हो गई हैं। सेनेट इंतखाबात में 5 उम्मीदवार मैदान में रह गईं जो अपनी किस्मत आजमाई करेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की खातून सेनेटर उम्मीदवार सोबिया शाहिद और JUIP की शाजिया भी मैदान में आई हैं। आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालिद, मिसाल आज़म यूसुफ जई और महताब जफ़र भी कल अपनी किस्मत आजमाई करेंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी ने कहा है कि फुप्पो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक बावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब मातमा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज़ से कबल ही फलापशु हो गया। आज़मा बुखारी ने कहा कि अलीमा बाजी ने भी 5 अगस्त के नाम निहात एहतजाज की नाकामी की पेशगी इतला दे दी है। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इदारों में 354 अरब की माली बेज़ाब्तगियाँ चार्जशीट है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होने वाले फंड्स की बंदर बांट हो रही है। चोर चोर कर राग अलापने वाले खुद 12 साल से करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। जो लोग नाअहल हो रहे व नाकाम बगावत के मरतकब करार पाए। आज़मा बुखारी ने कहा कि 9 मई के वाक़यात पर नदामत और शर्मिंदगी के बजाय इनका दिफा करना भी शर्मनाक है। शुहदा के मुजस्मे जलाने वाले कौम के लिए काबिल नफरत बन चुके हैं। मुशीर बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि नाअहल हुकूमत PTI के अहल उम्मीदवारों को नाअहल करार दे रही है। जिन उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया इनका असल कसूर यह था कि वो फॉर्म 45 पर मुंतखब हुए थे। जाली हुकूमत PTI के उम्मीदवारों को जाली मुकदमात में नाअहल करार दे रही है। PTI के उम्मीदवारों को नाअहल करार देना फॉर्म 47 के जरिए अपने अपने उम्मीदवार लाने की साजिश है। इलेक्शन कमीशन अब एक रियासती इदारा नहीं बल्कि जाली हुकूमत की B टीम बन चुका है। जाली हुकूमत 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल से बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। न्यूज़ स्टूडियो सब तक लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।